إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں آپ کو ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہماری زندگی کے تمام سامان کو ہمارے لیے مہیا اور مسخر فرمایا، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھلانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی اور پھر ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائی۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مکی و مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شافعی روز محشر شافعی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو، کہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے اوپر دین اسلام کو مکمل کیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، جن کے اوپر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، جن کے بعد اب کوئی نیا نبی، نئی کتاب، نئی شریعت آنے والی نہیں، جن کا لایا ہوا پیغام آخری پیغام ہے اور قیامت تک کے لیے انہی کی اتباع اور پیروی میں ہدایت ہے اور ان کی نافرمانی اور ان کی مخالفت میں گمراہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، جن کی محبت ہمارا ایمان ہے، جن کے فرامین و ارشادات عین اسلام ہے، جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے کچھ حالات کی بنا پر طلاق کے مسائل کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ جب حکومت نے طلاق ثلاثہ کے خلاف ایک قانون پاس کیا تو لوگوں کو آگاہی کے لیے ہم نے طلاق کے مسائل کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو 12 خطبوں پر مشتمل ہے،
جس میں سے 8 خطبے آپ سن چکے ہیں جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ آج کے جمعہ میں 9واں خطبہ لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے عدت کا بیان۔ یہ بھی طلاق کا ایک حصہ ہے کہ ایک عورت جو شادی کی وجہ سے ایک رشتے سے جڑ جاتی ہے، اس رشتے سے جب الگ ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ طلاق کی وجہ سے ہو، چاہے وہ موت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ خلا کی وجہ سے ہو، تو ایک مدت اسے اپنے آپ کو روک کے رکھنا پڑتا ہے، جسے عدت کہتے ہیں۔ عدت یہ عدد سے ماخوذ ہے، ہم اور آپ بھی اپنے بول چال میں عدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 1 عدد، 2 عدد، 3 عدد، اسی سے عدت ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا، گنتی کرنا۔ چونکہ عورت طلاق کے بعد یا وفات کے بعد یا خلا کے بعد اپنے مہینوں کو گنتی ہے، شمار کرتی، چاہے وہ حیض کی شکل میں ہو یا مہینوں کی شکل میں ہو، یا وہ حمل سے ہے تو حمل کی وضع کی شکل میں یعنی بچے کی پیدائش کی شکل میں ہو، اسے شمار کرتی ہے، اس نے مدت تک اپنے آپ کو روک کے رکھتی ہے، اسی لیے اسے عدت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک عورت پر واجب ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد، وفات کے بعد، خلا کے بعد وہ عدت گزارے، عدت اسے گزارنی پڑتی۔ اور ہر عورت کی عدت الگ الگ ہے۔ اب ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے یا جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، وہ اس سے آزاد ہونے والی ہے، اب دوسری جگہ کہیں نکاح اسے کرنا ہے تو کتنی مدت تک وہ رکے رہے گی، اس کی کیفیت کے اوپر ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی 3 کیفیت ہو سکتی ہے۔ یا تو وہ عورت حالت حمل میں ہوگی تو اس کی عدت الگ ہے، یا تو وہ عورت حمل کی حالت میں نہیں ہے بلکہ وہ اسے ماہواری آ رہی ہے، حیض آ رہا ہے تو اس کی عدت الگ ہے، یا تو وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس کا حیض رک چکا ہے، اب اسے حیض نہیں آتا ہے، یا ابھی نابالغ ہے، اسے حیض شروع نہیں ہوا ہے، تو ایسے عورت کی عدت الگ ہوتی ہے، جسے عائشہ کہتے ہیں، یعنی عدت حیض سے جو مایوس ہو، یعنی جسے حیض نہ آتا ہو۔ اور حمل والی عورت کو حاملہ، حیض والی عورت کو حائضہ، اور جسے حیض نہ آتا اسے عائشہ کہا جاتا ہے۔ تینوں کی عدت الگ الگ ہے، انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی عورت جو حالت حمل میں ہو اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو، تو ایسے عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت روک کے رکھے جب تک کہ اس کا حمل وضع نہیں ہو جاتا، یعنی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اب بچہ پیدا ہونے میں چاہے کتنا بھی وقت باقی ہو، طلاق دینے کے بعد چاہے اب پورا 9 مہینہ باقی ہو یا 4-5 مہینے باقی رہ گئے ہوں یا 1-2 دن باقی رہ گیا ہو، جس دن اس کا بچہ پیدا ہوا اس کی عدت ختم۔ جیسا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ام کلثوم بنت عقبہ تھی۔ ایک بار کسی بات پر دونوں میں انبن ہو گئی، بیوی نے کہا آپ مجھے طلاق ہی دے دو، آپ مجھے طلاق دے کے مجھے چھٹکارا دو، مجھے آرام پہنچاؤ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا جا میں نے تجھے طلاق دیا، اور یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، یعنی حمل سے تھی اور حمل بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکا تھا۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس آئے گھر تو ان کی بیوی بچہ جن چکی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تجھے دھوکے میں رکھے، تو نے مجھے دھوکے میں رکھا، تو نے مجھے دھوکہ دیا، یعنی اتنا کم مجھے موقع دیا سوچنے سمجھنے کا، تھوڑا موقع مجھے ملتا تو میں تجھ سے رجوع کر سکتا تھا، واپس لے سکتا تھا، کیونکہ حالت عدت میں جب رجعی طلاق ہو، پہلی یا دوسری طلاق ہو تو شوہر رجوع کر سکتا ہے بلا کسی خرچ کے، بلا کسی دوسرے نکاح کے، ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اب عدت ختم ہو گئی تو انہیں بڑا افسوس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور ابھی میں نماز پڑھ کے آیا اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب تم پر سبقت لے گئی، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری بیوی کی عدت ختم ہو چکی ہے،
अब अगर उसे वापस लेना चाहते हो तो दोबारा तुमको निकाह का पैगाम भेजना पड़ेगा, दोबारा निकाह का पैगाम भेजना पड़ेगा। वो तुम्हारा पैगाम कबूल करेगी, निकाह के लिए राजी होगी, तुमसे निकाह होगा, फिर से मेहर देना पड़ेगा, फिर से वलीमा करना पड़ेगा, फिर तुम उसको अपनी बीवी बना सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तलाक के अंदर आयत नंबर 4 में ये फरमाया, व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अना हम्लहुन्ना, कि हमल वाली औरतों की इद्दत ये है कि वो अपने हमल को वज़ा कर दे, यानी बच्चा जन्म दे। जब बच्चा पैदा हो गया तो उनकी इद्दत खत्म हो गई। तो ये ऐसे औरत की इद्दत है जो हालत हमल में हो, उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया हो। लेकिन अगर वो औरत हाइजा हो, जिसके शौहर ने उसे तलाक दिया है, वो औरत हालत हमल से नहीं है, यानी उसे अभी हर महीने हैज आ रहा है, तो ऐसी औरत की इद्दत 3 हैज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासा क़ुरू, कि ऐसी मुतल्लका औरतें जिन्हें हैज आता हो वो अपने आप को रोक के रखेंगी 3 क़ुरू। क़ुरू कहते हैं हैज को। क़ुरू का लफ्ज ये तुहर पर भी, पाकी पर भी इस्तेमाल होता है और हैज पर भी इस्तेमाल होता है। यानी औरत जब हैज से पाक होती है तब भी उसे क़ुरू कहते हैं, और जब हालत हैज में होती है तब भी उसे क़ुरू कहा जाता है। लेकिन ज्यादा सही जो है वो हालत हैज में होना है, इसलिए कि हदीस से यही साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, सूरह बकरा की आयत नंबर 288 है कि अल्लाह ने फरमाया कि मुतल्लका औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखेंगी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरू के लफ्ज की वजाहत इन अल्फाज में की, फरमाया मुस्तहाजा औरत के लिए अंतदअत सलासा अय्याम अक़राइहा, ये अबू दाऊद की आयत में हदीस नंबर 285, 281, 297 है। तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 126, इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 625 है। क्या आपने फरमाया मुस्तहाजा औरत अपने हैज के अय्याम में, अक़रा के अय्याम में, यानी क़ुरू की जमा अक़रा है, अक़रा के अय्याम में नमाज को छोड़ देगी। क्या मतलब हुआ? यहाँ क़ुरू का माना बतलाने के लिए हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पेश की कि क़ुरू हैज को कहते हैं। हालत हैज में जितने दिन उसके गुजरते हैं वो औरत अपने नमाज को छोड़ देगी और इस्तिहाजा की हालत में जो होगी वो नमाजें पढ़ेगी। इस्तिहाजा एक बीमारी है, शैतान एक औरत के रहम में कचोके लगा देता है तो औरत का खून जारी हो जाता है। वो समझती हैज है, हालांकि वो हैज नहीं होता है, क्योंकि हैज ज्यादा से ज्यादा 9 दिन तक रहता है और उससे ज्यादा कभी कभी किसी औरत का 9 से ज्यादा महीना भर, 6 महीना, साल भर खून चालू रहता है। तो ऐसी हालत में औरत क्या करे? तो जितने दिन उसके हैज के थे, पिछले दिनों में जो सेहत के दिनों में थी, तो उसे 7 दिन 9 दिन जो भी आते थे उन दिनों को वो गिनेगी, शुमार करेगी और उतने दिन नमाज नहीं पढ़ेगी। बाकी दिनों में वो नए सिरे से वजू करेगी, नमाज पढ़ेगी, खून उसका चालू रहेगा, लेकिन नमाज उसकी माफ नहीं है, क्योंकि वो हैज का खून नहीं है, वो इस्तिहाजे का खून है। तो इस्तिहाजे की बिना पर नमाज नहीं छोड़ सकती, हैज की बिना पर एक औरत नमाज छोड़ देती है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज को क़ुरू का नाम दिया है। पता चला क़ुरू के माने हैज के होते हैं। इसी तरह से वाज़ेह तौर पर हैज के अल्फाज भी हदीस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इब्न माजा की हदीस नंबर 1690 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी तो आपने उन्हें हुक्म दिया अंता तद्द बिसलात हैज, कि तुम इद्दत गुजारो 3 हैज तक, 3 हैज आने तक इद्दत गुजारो। तो हदीस के अंदर, कुरान के अंदर क़ुरू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हदीस के अंदर हैज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इससे पता चलता है कि 3 क़ुरू से मुराद 3 हैज है। तो अगर हालत हैज में औरत है, यानी उस हैज के बराबर पाबंदी से आ रहे हैं और ऐसी औरत को उसका शौहर तलाक दे देता है तो वो 3 हैज तक अपने आप को रोक के रखेगी, ये इद्दत कहलाती है। और तीसरी किस्म की औरत यानी जिसे हैज नहीं आता है, अभी नाबालिग है, जैसे कि अरब के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं कि वहाँ कम उम्र बच्चियों के भी निकाह कर दिए जाते थे। खुद हमारे यहाँ भी बहुत सारे इलाकों में छोटी उम्र में निकाह कर दिए जाते हैं, हाल लड़की वाली भी नहीं होती है, या इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब उसका हैज बंद हो चुका है और ऐसी सूरत में उस औरत को उसका शौहर तलाक दे देता है, तब क्या करेगी? वो कैसे शुमार करेगी अपनी इज्जत को? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए फरमाया वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासु अश्हुरिन वल्लाई लम यहिद,
ایسی عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی حیض آنا ان کا بند ہو گیا ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے، یا وہ عورتیں جن کا ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا ہے، جن کو حیض نہیں آتا ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی بنا پر ہو، کم عمری کی بنا پر ہو، کسی بھی بنا پر ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینہ ہے۔ جب ان کے شوہر نے انہیں طلاق دی تو اس وقت سے وہ 3 مہینہ تک شمار کریں گی، اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، پھر وہ ان سے آزاد ہو جائیں گی، یہ عدت کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تو مطلقہ عورتیں تھیں جن کے شوہروں نے انہیں طلاق دی ہے۔ ایک صورت اور ہے خلا کی، جس کا بیان آپ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ سن چکے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ یعنی عورت مطالبہ کرتی ہے کسی بنا پر اپنے شوہر سے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اپنا مہر واپس لے لیجیے اور مجھے چھوڑ دیجیے۔ کوئی جائز، کوئی معقول عذر ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ وہاں سن چکے تھے۔ تو ایسی صورت میں خلا ہوتا ہے، جو شوہر بیوی کے کہنے پر اسے دیتا ہے۔ تو خلا یافتہ عورت کی عدت کیا ہے؟ جو عورت اپنے شوہر سے خود طلاق لے لیتی ہے، ایسی عورت کی عدت 1 مہینہ ہے، کہ وہ صرف ایک حیض ہے، کہ ایک حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی اور اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ایک حیض تک تم عدت گزارو۔ جب انہوں نے، ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم ایک حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھو، یعنی عدت گزارو، اس کے بعد تم کہیں نکاح کر سکتی ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 946 ہے اور ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2229۔ اسی طرح سے ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، جسے بیوہ کہتے ہیں، اب اس عورت کی بھی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اسے وہ حالت حمل میں ہوگی، جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تب وہ حالت حمل میں ہوگی، یا تو حیض آنے والی ہوگی، حمل کی حالت میں نہیں ہوگی تو اسے ہر مہینے حیض آتا ہوگا، یا تیسری حالت ہوگی کہ وہ حیض اس کا بند ہو چکا ہوگا، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوگی کہ حیض بند ہو چکا ہے۔ تو ایسی حالت میں، یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو ایسی حالت میں ایک بیوہ کی عدت کیا ہوتی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روک کے رکھیں۔ ایسی عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ یہ کون سی عورت؟ جو عورت حاملہ نہ ہو۔ جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ شوہر کی وفات ہوئی، اب بیوی عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ کہیں نکاح کر سکتی۔ وہ عدت اگر وہ حالت حمل میں ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم، چاہے وہ کل ہی پیدا ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ لیکن جو حالت حمل میں نہ ہو، چاہے اسے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کی سب کی عدت 4 مہینہ 10 دن۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے شوہر نے اس سے نکاح کیا ہے لیکن نکاح کرنے کے بعد ابھی دونوں کا ملاپ نہیں ہوا، شوہر نے بیوی سے ہم بستری نہیں کیے اور پہلے اس کا انتقال ہو گیا، جیسے کہ آج کل حادثے ہوتے ہیں، نکاح کیا، نکاح پڑھا کر کے ابھی بارات واپس آ رہی تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی تو بن چکی ہے لیکن ابھی دونوں کا ملاپ نہیں ہوا، ابھی ہم بستری نہیں کیے، تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ ایسی عورت بھی عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، وہ بھی عدت گزارے گی، اور اسے مہر بھی ملے گا، اسے شوہر کی جائیداد میں سے وراثت بھی ملے گی، حصہ بھی ملے گا، کیونکہ قانونی طور پر وہ اس کی بیوی ہے۔ تو جو بیوی، ایسی بیوی جس کا شوہر اور اس کی وفات ہو جائے ہم بستری سے پہلے ہی، تو وہ عدت بھی گزارے گی، مہر بھی پائے گی، اور اس طرح سے اسے ورثہ بھی ملے گا شوہر کی جائیداد میں سے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1858 ہے اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 480 ہے، ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1145 ہے، نسائی کے اندر حدیث نمبر 121، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1891۔ اور ایسی عورت
जिसके शौहर ने उसे तलाक दिया लेकिन अभी उससे हमबिस्तरी नहीं की, निकाह हुआ, निकाह होने के बाद घर आए लेकिन अभी तक दोनों मिले नहीं, हमबिस्तरी नहीं हुई और किसी बात पर तलाक हो गई। जैसे आम तौर पर पहले हम जानते हैं कि छोटी उम्र में निकाह हो जाता था और साल 2 साल के बाद रुखसती होती थी। अब तो लोग मंगनी करके छोड़ देते हैं, पहले निकाह पढ़ा के लोग छोड़ देते थे। खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जब वो 6 साल की उम्र में थी तो उनका निकाह हो गया था, लेकिन रुखसती 3 साल के बाद हुई, 9 साल की उम्र में। तो ऐसी औरत जिसका निकाह हो चुका है लेकिन अभी दोनों मिले नहीं, अभी हमबिस्तरी नहीं हुई है, और ऐसी सूरत में अगर शौहर तलाक दे देता है तो इसकी इद्दत क्या है? ऐसी औरत पर कोई इद्दत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दह तातदूनहा। क्या ईमान वालो, तुम जिन मोमिना औरतों से निकाह करो फिर तुम उन्हें हमबिस्तरी करने से पहले तलाक दे दो तो उन पर कोई इद्दत नहीं है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 49। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसला क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि ऐसी औरत पर कोई तलाक नहीं है जिन औरतों से हमबिस्तरी से पहले ही तलाक हो जाए। इसी तरह से इद्दत का एक मसला और है कि ये बीवी इद्दत कहाँ गुजारेगी। आमतौर पर हमारे यहाँ जो माहौल है कि पहले जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके बाद तलाक होती है तो बीवी चली जाती है मायके और वहीं जाकर पूरी इद्दत गुजारती। नहीं, शरीयत के मुताबिक एक औरत इद्दत अपने शौहर के घर में गुजारेगी और जब तक वो हालत इद्दत में होगी तब तक शौहर उसके खर्च का भी जिम्मेदार होगा। वो शौहर के सामने रहेगी, शौहर की खाएगी, शौहर के घर में रहेगी, लेकिन दोनों शौहर मियां बीवी की तरह रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते क्योंकि तलाक हो चुकी है। हाँ, अगर वो मिल जाते हैं तो ये रुजू हो जाएगा, वो तलाक खत्म हो जाएगी, यानी वापस आ गए। तो मुतल्लका रजइया यानी पहली तलाक अगर हुई है, दूसरी तलाक हुई है, ये दोनों तलाक़ें रजई कहलाती है। इन दोनों तलाकों की इद्दत बीवी अपने शौहर के घर में पूरी करेगी और शौहर उसका पूरा खर्चा उठाएगा। लेकिन तीसरी बात जब तलाक है, तलाक़ बाइना जिसे कहते हैं, जिसके बाद रुजू नहीं कर सकते, ऐसी तलाक, ऐसी इद्दत बीवी अपने मायके में या अपने रिश्तेदार किसी के घर पे भी गुजारेगी, लेकिन अपने शौहर के घर पर नहीं गुजार सकती। इसके अंदर हिकमत यह है कि शौहर जब उसके ऊपर खर्च करेगा और बीवी उसके घर में रहेगी, 24 घंटा उसकी नजरों के सामने रहेगी, तो ज्यादा इम्कान है कि दोनों का फिर आपस में सुलह कर लें, दोनों आपस में रुजू कर लें और फिर एक टूटा हुआ घर फिर से बच जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है कि ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना। उन औरतों जिनको तुम तलाक दिए हो, तलाक रजई दिए हो, उनको अपने घरों से निकालो मत और ना ही वो खुद निकले, उन्हें खुद भी निकल कर नहीं जाना चाहिए, शौहर के घर में इद्दत पूरी करनी चाहिए। ये सूरह तलाक की आयत नंबर 1 में। हाँ, तीसरी तलाक पाने वाली जिसको तलाक़ बाइना कहते हैं, कि उसके बाद रुजू नहीं है, तो ऐसी औरत अपने मायके में जाकर इद्दत गुजारेगी। जैसा कि फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके शौहर अबू अमर बिन हफ्स ने तीसरी बार तलाक दी थी, तलाक़ बाइन। तो उन्होंने तलाक के बाद भी अपनी तरफ से खुशी से कुछ देना चाहा बीवी को, 2 मुद्द या 2 सा कुछ अनाज उन्होंने देना चाहा थोड़ा सा, तो नाराज हो गई, मुझे इतना कम क्यों दे रहा, मुझे नहीं चाहिए, इतना और चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर गई कि मुझे इन्होंने तलाक दी है और मुझे कुछ 2 मुद्द या 2 सा मुझे जो दे रहे हैं बस। तो आपने फरमाया कि वो दे रहे हैं उनकी मेहरबानी, तुम उसकी भी हकदार नहीं हो। तीसरी तलाक पाने के बाद अब तुम जाओ अपने मायके में इद्दत गुजारो। अब शौहर के घर में इद्दत नहीं गुजार सकती, शौहर तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता है। ये ऐसी औरत जिसको तीसरी तलाक मिल चुकी हो उसकी इद्दत की बात हो रही है। इसी तरह से जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, यानी जो औरत बेवा हो जाए, वो इद्दत कहाँ गुजारेगी? वो भी अपने शौहर के उसी घर में इद्दत गुजारेगी जिस घर में रहते हुए शौहर का इंतकाल हुआ है, चाहे वो घर उसका खुद का हो या किराए का हो। अगर रहने की गुंजाइश है, 4 महीना 10 दिन रहकर वो इद्दत पूरी कर सकती है, तो उस घर से नहीं निकलेगी, वहीं रहकर इद्दत गुजारेगी। अगर किसी भी मजबूरी की बिना पर उस घर में नहीं रह सकती है,
घर दूसरे का था, किराए का था, खत्म हो गया, कोई भाड़ा भरने वाला नहीं है, उसका अपना जाती घर है तो जा सकते अपने घर में। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, उसकी देखभाल करने वाले भी हैं, किराए भरने की ताकत भी है, तो उसी घर में रहकर वो इज्जत गुजारे जिस घर में रहते हुए इसके शौहर का इंतकाल हुआ है। ये बेवा औरत के लिए जरूरी है, यानी ऐसी औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है। फुरआ बिनते मालिक एक सहाबिया है, इनके शौहर के कुछ गुलाम थे और ये उनके गुलाम भाग गए। ये अपने गुलामों को ढूंढने के लिए जब गए तो एक जगह पर मिले, लेकिन ये बेचारे अकेले से अपने गुलामों को लाने के बजाय अपने गुलामों को पकड़कर लाने जब गए तो इनके गुलामों ने इकट्ठा होकर इनको ही कहीं कत्ल कर दिया। अब इनकी बीवी फुरैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने वो अकेली पड़ गई, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर के घर में अकेली हूँ, मैं यहाँ कैसे इज्जत गुजारूं, मैं अपने महकमे में चली जाऊं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाऊं, वही इज्जत गुजारूं। आपने फरमाया नहीं, तुम अपने शौहर के उसी घर में इज्जत गुजारो जिस घर में रहते हुए तुम्हारे शौहर की वफात हुई। ये अबू दाऊद और तिरमिजी और नसई की रवायत। इसी तरह से ऐसी औरत जिसका शौहर लापता हो गया है, जिसको कहते हैं कि मफकूदुल लहा, ऐसी औरत जिसका शौहर लापता हो गया है, गायब हो गया है और नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढने के सारे जतन कर चुके, हर तरह से अपनी कोशिशें सर्व कर चुके, लेकिन कोई पता नहीं लग रहा है, ना उसके कहीं जिंदा रहने की खबर आ रही, ना यही खबर मिल रही कि वो वफात पा चुका है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी औरत क्या करेगी, कब तक बैठी रहेगी? इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कुछ नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस भी नहीं मिलती, लेकिन आपके दूसरे खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे मौके पर एक फैसला किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी इत्तिबा करो और मेरे खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता है उनकी इत्तिबा करो। तो ऐसे मौके पर जब हमें कुरान में कोई मसला नहीं मिल रहा है, हदीस में कोई मसला नहीं मिल रहा है, हम देखेंगे कि खुलफाए राशिदीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा ने क्या फैसला किया है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी औरत जिसका शौहर गुम हो जाए और ना मिले, ऐसी औरत के बारे में फैसला किया है कि 4 साल तक वो अपने शौहर का इंतजार करेगी। 4 साल तक अपने शौहर का इंतजार करेगी और इंतजार करने के बाद अगर वो आया तो ठीक है, वरना उसे मुर्दा मान करके 4 महीना 10 दिन उसकी इद्दत गुजार लेगी और इद्दत गुजारने के बाद फिर वो कहीं अपना निकाह कर सकती। इस तरह से ये फैसला उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया है, जो मुवत्ता और बैहक़ी के अंदर और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है। लेकिन और यही अक्सर उलमा का, अक्सर अइम्मा का यही फतवा है, लेकिन वो हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक यानी हनफी मसलक के अंदर ये है कि नहीं, जब तक उसके शौहर का पता नहीं चल जाता तब तक वो इंतजार ही करती रहेगी, यहां तक कि एक आदमी के मौत का यकीन हो जाए, जो मौत की उम्र होती है। अब मौत की उम्र सबकी अलग अलग होती है, कोई 60 साल में मर जाता है, कोई 70 साल में मर जाता है, कोई 80 साल में, कोई 100 के ऊपर भी जाता है, 120 साल, कोई 200 साल तक भी जीता है। तो उन्होंने कहा, उसमें फिर मुख्तलिफ लोगों के अक़वाल हैं, कुछ लोग कहते हैं 60 साल इंतजार करेगी, कुछ लोग कहते हैं 70 साल, कुछ 80 साल, कुछ 120 साल, कुछ लोग कहते हैं 200 साल तक इंतजार करेगी, उसके बाद वो इद्दत गुजार करके फिर निकाह करेगी। 200 साल तक जो औरत इंतजार करेगी वो निकाह फिर क्यों करेगी? वो निकाह करने के लिए क्या जिंदा रहेगी? लिहाजा ये फतवा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का जो फतवा है वही दुरुस्त है, वही अमल के लायक है कि एक औरत अपने शौहर का 4 साल तक इंतजार करेगी जो गुम हो चुका है। अब अगर वो आता है, मिलता है, तो उसके निकाह उसके साथ रहेगी, नया निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस नहीं आता है तो उसकी वफात मान करके 4 महीना 10 दिन इज्जत गुजार लेगी और कहीं निकाह कर लेगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फतवा, यही मसला बताया है और बहुत सारे दीगर सहाबा ने और अइम्मा और मुहद्दिसीन ने भी यही कहा है। अगर आगे जगह हो तो आप लोग थोड़ा सा खिसक जाए ताकि पीछे भाइयों को जगह मिल जाए। पीछे कुछ भाई खड़े हैं और किसी का कंधा फांस कर आने की जरूरत नहीं है, इस जुमा के आदाब के खिलाफ। बस जिसके भी सामने जगह खाली हो अपने अपने खिसक कर जगह पूर्ण कर लें। लेकिन एक मसला और है कि अगर एक औरत ने अपने शौहर का 4 साल इंतजार किया, उसके बाद 4 महीना 10 दिन इज्जत गुजार के उसने कहीं निकाह कर लिया, उसके बाद उसका शौहर आ गया पहला, तो अब क्या करेगी एक औरत? तो पहला शौहर अगर फिर से वापस आ जाता है तो बीवी उसी की होगी। कुछ उलमा ने फतवा दिया है कि जैसे शेख सालिह इब्न उसैमीन जो सऊदी के बड़े आलिम गुजरे हैं, मुतव्वा गिरोह के सरदार थे और
उनके फतवे भी वहाँ चलते थे। शेख सालिह इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह से सहाबा में इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा मिलता है। ताबईन में इब्न मुसय्यिब सैयद मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह का इमाम बुखारी ने नकल किया है, और हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि हज़रत अली ने भी यही फतवा दिया है कि अगर शौहर पहला वापस आ जाता है तो ये बीवी फिर उसी की हो जाएगी। मुसलमान ने यहाँ ये भी कहा है कि वहाँ इख्तियार दिया जाएगा। पहला शौहर अगर राजी है, ठीक है तुमने निकाह कर लिया, तुम वहीं खुश रहो, तो जायज जो दूसरे शौहर के पास ही रहेगी। लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो उस दूसरे शौहर का मेहर वापस देगा उसे, और अपनी बीवी को फिर अपने में ले लेगा, और नया निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं। ये भी इमाम मालिक के नजदीक ये है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां निकाह पढ़ा चुकी है, मेहर ले चुकी है, अब वो उसके वापस नहीं ले सकता है। तो इस तरह से गुमशुदा ऐसी बीवी जिसका शौहर गुमशुदा हो चुका हो, इसके ताल्लुक से ये फतवे थे, और ये उसकी इद्दत के ताल्लुक से ये बातें थी। क्या इद्दत के दौरान बीवी अपने घर से निकल सकती है अपने कामकाज की, अपनी जरूरियात के लिए? तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1483, कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उनकी खाला को तलाक हो गई। उनकी खाला मुतल्लका थी, लेकिन अपने खेत में उनके खजूरों को पानी देने के लिए उन्हें जाने की जरूरत पड़ती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इद्दत गुजारूंगी तो मैं अपने खजूरों को पानी देने के लिए जा सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ जाओ, अपने खजूरों को पानी देने के लिए जाओ, शायद इसके जरिए जो पैदावार हो, तुम सदका खैरात करो, तुम नेकी कमाओ, तो नेकी कमाने से तुम्हें क्यों रोका जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, जिसे पता चला कि एक औरत जरूरत के तहत निकल सकती, चाहे अपनी उसकी जाती जरूरत है कि क़ज़ाए हाजत के लिए निकल रही है, घर का कोई सामान लाने के लिए कोई दूसरा फर्द नहीं है, तो बाजार भी जाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकती है, उसकी खेती बाड़ी है, जानवर है और कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उनकी देखभाल के लिए वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निकल सकती है। तो ऐसी जरूरतों के लिए एक औरत इद्दत के दौरान भी घर से बाहर निकल सकती है। इसी तरह से इद्दत के दौरान दूसरा निकाह नहीं कर सकते। जब तक एक औरत इद्दत की हालत में है, इद्दत गुजार रही है, तब तक कोई दूसरा मर्द उससे शादी नहीं कर सकता है, ना कोई उसको पैगाम दे सकता है शादी का, ना वो औरत किसी को पैगाम दे सकती निकाह के लिए। हाँ, इशारे किनारे में अगर कोई बात हो तो कह सकते हैं कि ठीक है, इद्दत के बाद जरा बात करनी है आपसे, इस तरह से इशारा दे सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उनके शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ, तो आपने फरमाया कि जब इद्दत गुजार लेना तो मुझे जरा खबर देना, मुझे जरा बताना। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत गुजरने के बाद उनसे निकाह कर लिया। तो इस तरह से इशारा सिर्फ कोई कर सकता है, लेकिन इद्दत के दौरान ना तो निकाह का पैगाम दे सकते हैं, ना ही निकाह कर सकते हैं। इसी तरह से लौंडियों की इद्दत की बात है, लेकिन आजकल तो उसका दौर में ही है, इसलिए सच्चे तौर पर भी बयान कर देता हूँ कि दारक़ुतनी और बैहक़ी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतअतद्दुल अमतु हैज़तैन, लौंडियों की इद्दत 2 हैज़ होती है। आजाद औरतों की इद्दत 3 हैज़ होती है, लौंडियों की इद्दत 2 हैज़, यानी उसके शौहर ने को तलाक दे दी हो और वो लौंडी हो तो उसको सिर्फ 2 हैज़ तक इद्दत गुजारेगी। इसी तरह से कोई आदमी जब कैदी खरीद के लाता है, एक औरत जो लौंडी होती है वो 2 सूरतों में बनती है। दुश्मन ममालिक से वो गिरफ्तार होकर कैदी की सूरत में आई है तो फौजियों को तकसीम कर दिया जाता था, वो लौंडिया बन जाती थी, या उस जमाने में लोग खरीद कर लाते थे। कुछ कबाइल ऐसे थे जो बेचे खरीदे जाते थे गुलाम और लौंडी की सूरत में, लोग एक दूसरे को हदिया और तोहफे में भी देते थे। तो ऐसी लौंडियां जो खरीद कर लाई गई हो, जो कैदी बना कर लाई गई हो, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है कि 1 हैज़ आने तक उनसे कोई हमबिस्तरी ना करे, जिसको कहते हैं इस्तिबराए रहम, यानी पता चल जाए कि ये पहले से कहीं किसी से हमबिस्तरी हुई है और ये हालत हमल में है या नहीं है, उसके बच्चेदानी, उसके रहम का पता चल जाए, इसलिए उसे 1 हैज़ तक रोक के रखना पड़ता था। उसके अलावा दूसरी खिदमत उससे ले सकते, दूसरे काम कर सकते, लेकिन हमबिस्तरी नहीं कर सकते थे कैदी से, लौंडी से, उस वक्त तक जब तक कि 1 हैज़ से ना आ जाए। ये इस्तिबराए रहम कहते हैं इसे। इसी तरह से इद्दत के ताल्लुक से कुछ मसले कि एक बीवी है, उसके शौहर ने उसे तलाक दी और वो इद्दत गुजार रही है, जो भी उसकी इद्दत है 3 है या 3 महीने, इद्दत के दौरान उसके शौहर अचानक इंतकाल हो जाता है, तो अब वो औरत क्या करेगी?
क्या वो तलाक की इद्दत पूरी करेगी या वो वफात की इद्दत पूरी करेगी? इस सिलसिले में अबू बकर अल-जज़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अब तलाक की इद्दत छोड़ करके वो वफात की इद्दत पूरी करेगी, यानी 4 महीना 10 दिन वाली इद्दत पूरी करेगी। इसलिए कि जब रजई तलाक होती है, एक बीवी रजई तलाक में पूरी तरह से अभी आजाद नहीं होती, वो अपने शौहर के अक़्द में ही रहती है जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए। शौहर को रुजू करने का पूरा हक रहता है। इसलिए हालत रजई तलाक में इद्दत के दौरान अगर शौहर की वफात हो जाती है तो अब वो तलाक की इद्दत छोड़ के वफात की इद्दत गुजारेगी और वफात की इद्दत गुजारने के बाद अपने शौहर के वरासत में से हिस्सा भी लेगी, क्योंकि अभी तक उसकी बीवी ही वो मानी जाएगी। लेकिन जिसे तीसरी तलाक मिली हो, बायना हो, वो अपनी तलाक की इद्दत पूरी करेगी और आजाद हो जाएगी। इसी तरह से कोई औरत ऐसी है जिसे 1 हैज 2 हैज आने के बाद उसका हैज बंद हो जाए, वो इद्दत गुजार रही थी, इद्दत के दौरान उसका हैज बंद हो गया किसी बीमारी की वजह पर या उम्र हो चुकी थी इसलिए, तो अब क्या करेगी? तो अब वो हैज की इद्दत छोड़ करके महीने की इद्दत पूरी करेगी, यानी 3 महीने के हिसाब से गिनेगी। इसी तरह से कहते हैं कि एक औरत जिसे हैज आता था लेकिन इद्दत गुजार रही थी 3 महीने की, अचानक उसे हैज शुरू हो गया, हैज आना बंद था उसका लेकिन फिर शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत में वो फिर हैज के मुताबिक इद्दत गुजारेगी, महीने की इद्दत छोड़ देगी। और इसी तरह से ये भी मसला है कि अगर हालत दौरान हैज के दौरान पता चल गया कि हालत हमल में है, पेट से है, तो फिर हमल की इद्दत गुजारेगी। और वफात के बाद एक औरत जो अपने शौहर के लिए इद्दत गुजारती है, उसके साथ साथ उसे शोक भी मनाना पड़ता है। इद्दत एक अलग चीज है, शोक एक अलग चीज है। शोक यानी मौत पर, किसी की मैयत पर घर वालों को जो गम होता है उसे शोक कहते हैं। और हर किसी को शोक करने का हक, जायज तरीके में, जायज हद में, बगैर सीना कोबी किए, बगैर मातम किए, बगैर कपड़े फाड़े, बगैर बाल नोचे, सीना पीटे शोक मना सकते हैं। किसी के अजीज का, किसी के वालिद का, वालिदा का, बीवी का, बच्चे का, किसी का इंतकाल हो जाए तो घर के अफराद उसके लिए शोक मनाते हैं, लेकिन घर के सारे अफराद सिर्फ 3 दिन शोक मना सकते हैं। घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं पकाएंगे, पड़ोसी लोग खाना भेजेंगे, कोई फंक्शन नहीं करेंगे, कोई ज़िन्नत इख्तियार नहीं करेंगे, गम की हालत में रहेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन कोई मजलिस नहीं सजाएंगे। कोई मजलिस सजाना, सीना पीटना, खाने का इंतजाम करना, ये सब मातम में आता है। मातम जायज नहीं, शोक मनाना जायज। तो घर के अफराद शोक मना सकते हैं। बीवी भी अपने शौहर की वफात पर शोक मनाएगी, लेकिन बीवी अपने शौहर की वफात पर 4 महीना 10 दिन शोक मनाएगी। दूसरे किसी की भी वफात पर सिर्फ 3 दिन शोक मनाएंगे घर के अफराद। अगर मनाते हैं तो, नहीं मनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बीवी के लिए जरूरी है कि 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर की वफात पर शोक मनाए, यानी ज़ेब ज़ीनत इख्तियार ना करे, कोई भी बहुत सजा धजा कपड़ा ना पहने, कोई जेवर ना पहने, कोई मेकअप चेहरे पर ना करे, कोई सुरमा ना लगाए, मेहंदी ना लगाए अपने हाथों में, बालों में, कहीं भी सादे कपड़े पहनेगी, खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगी। हाँ, अपनी जरूरत के लिए, जैसे नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल है, या आदमी को एक आदत है अगर तेल नहीं सर पे रखेगा तो सर दुखेगा, बीमार हो जाएंगे, तो दवा के लिए, इलाज के लिए तेल रख सकते, साबुन इस्तेमाल कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को एक और हुक्म दिया है कि हालत हैज से जब वो पाक हो जाएं तो खुशबू लगा लिया अगर अपने शर्मगाहों पर। तो इस तरह के चीजों को छोड़कर बाकी कोई ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार नहीं करेंगे हालत शोक में। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ौजे मोहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन है, उनके वालिद अबू सुफियान का जब इंतकाल हो गया, 3 दिन गुजर गए, तो उन्होंने खुशबू मंगाया, अपनी लौंडी से कहा लगाओ मेरे ऊपर, खुद अपने हाथों से भी अपने गालों पर उन्होंने लगाया और कहा देखो मुझे खुशबू की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें मसला बताने के लिए लगाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो औरत अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखती है, वो अपने किसी अजीज की मौत पर 3 दिन से ज्यादा शोक नहीं मना सकती। आज 3 दिन हो गए, मैं अपना शोक खत्म करती हूँ, मैं खुशबू लगा कर इस बात का इजहार करती हूँ कि मैं गम में नहीं हूँ, मैं शोक में नहीं हूँ। तो इस तरह से शोक मना सकते हैं। और हाँ, मर्द के ऊपर कोई इद्दत नहीं है।
عدت صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے اوپر ہاں ایک صورت میں، اگر کسی آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور 4 بیوی میں سے وہ ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ابھی جب تک بیوی عدت کی حالت میں ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، یہ اس کے اوپر پابندی ہے۔ لیکن اگر صرف ایک ہی ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو ایک مرد کو جو 4 تک کی رخصت ہے وہ بیوی کو طلاق دینے کے وقت ہی، دوسرے دن ہی، کبھی بھی وہ نکاح دوسرا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ چوتھی کے ساتھ 5ویں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے چوتھی کی حالت میں عدت جب تک گزر نہیں جاتی، یعنی پوری طرح سے بیوی آپ سے الگ نہیں ہو جاتی، تب تک آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، یہ شوہر کی پابندی ہے۔ اسی طرح سے سوگ کی حالت میں جو بہت سارے لوگوں کے یہاں بہت کچھ مشہور ہے کہ مخصوص لباس پہنیں گی، کالے کپڑے پہنیں گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جوتا نہیں پہنیں گے، ننگے پیر چلیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاند کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں میں مشہور ہے لیکن شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ان چیزوں کی ہمیں پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عدت کے چند مسائل تھے جو میں نے حضرت کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھے، جو طلاق کا ایک حصہ، ایک جز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اس کے مطابق اپنے تمام امور کو انجام دینے کی توفیق فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک کتاب و سنت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جو ان کے بھیجو سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بہر الہ ہم سب کو دنیا کے فتنوں سے بچائے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو ان کے بھیجو سے جگہ عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ویغفر لکم ولذکر اللہ اکبر۔